So first of all, I would like to thank all the influencers and creators. मैं बता रहा हूँ बहुत ट्रैवल करके आए हैं, सर ट्रैवल करके आए हैं, भाई भी ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है, ही हैज ऑल्सो ट्रैवल्ड, सो लाइक बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इनफैक्ट हमारी टीम भी मोस्टली रिमोट है, सब आज ट्रैवल करके सुबह सुबह पहुंचे हैं बस इस इवेंट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट. Then I would like everyone to introduce yourself, your SID obviously, and your niche. What do you do? How is your content unique? So my name is Ankit. My Insta page name is Full Stack Modi ji. It's already unique by the name. So basically, what we do is we teach coding or tech in the voices of Rahul ji and Modi ji. So yeah, it's just you can say आप ऐसा कह सकते हो कि by luck I became an influencer. My bread and butter is like I have an agency. So that's it. I'm from a tech background. Yeah. Thank you. Hello, so my name is Arnab. I run a YouTube channel called Startup Gyan, where we are trying to make entrepreneurship more accessible. And also, we run a podcast called Founder Gyan, where we interview founders and startup entrepreneurs. Because we believe entrepreneurs are the real heroes. Like we consider teachers, army people as heroes. We also believe entrepreneurs are also heroes. So we share their story. Plus, I also run a social media agency where we help founders and startups scale organically on social media. Across all platforms, I have million plus followers. Happy to be here. Hello. Hello everyone, good evening. My name is Priyank and Instagram channel is Priyank Singh Official and I am making India AI ready. That is the whole plan and that is where my content is directed to. I have launched a complete course about 10 and AI automations which probably people were charging for like 10,000, 20,000 bucks for training. I've completely launched it for free on YouTube. Right. So that's the first thing that I did, which went viral and because of which folks connected with me, they resonated with me. And that's the whole intent. Whatever I'm posting out there on the socials, it's all about providing value to you guys. And for the business perspective, I have my own AI automations agency, and that is where the revenue side of the things is. Right. But yeah, for the audiences, it's just giving as much as value as possible from my side. Thank you. Yeah, hello everyone. So I am a page called Sean Adams and I'm also a world record holder. By the way, currently I'm a 10th grade. And first of all, thank you for inviting and it's good to connect with you all people here. So I create content around startups and tech, most probably on the tech, how you can blend technology with startups. And I'm building a startup, it's a SaaS platform where multiple people from the industry come together to help students build something of their own. So it is named as Golim 360. And I've been running the startup from last 4 years. So currently it's the SaaS platform which we have been developing. This is a new thing that we have been developing. And we have our B school in Pune itself. Yeah. That's what I do. Hi everyone, my name is Gavish Srivastava, and as all of you know me by the last man speaks. So first of all, thank you so much to Dev Bhai for inviting me here. तो मैं पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूँ एंड उसमें भी बेसिकली मेरा एक निश है कि मैं डार्क साइड बताता हूँ हर एक पॉलिटिशियंस की. सो बेसिकली जो भी बातें लोग बोलने से डरते हैं या फिर वो कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके. किसी का किसी से कहीं फंडिंग आती है, किसी का किसी से इंटरेस्ट होता है, किसी का बिजनेस चलता है. सो कहीं ना कहीं हमारे देश में हर एक चीज पॉलिटिक्स से रन होती है बट कोई तो इंसान उस डार्क साइड को बोलेगा. सो दैट इज मी. Hi everyone, my name is Deenu Khan and I'm a content creator. Basically, AI का ही content मैं बनाता हूँ. Mostly focused on the creative side of AI, how to make AI videos, AI images, ads, all of these things basically. And I'm not a full-time content creator. I do job in Accenture as an ML engineer. And I'm not a doctor. I don't know why there is a doctor. This doctor, I believe, is from my email ID because I was working in a data science field as a data scientist. So this came from there, not medical wala doctor. Yeah, this is me. I will ask that question जो कोई क्रिएटर ढंग से आंसर नहीं करता. यहाँ पे क्रिएटर्स बैठे हैं जिन्होंने लाइक 45 पोस्ट किया, गॉट 50K प्लस फॉलोअर्स, 70 Reach 70. जब इनवाइट करा था एक हफ्ते पहले 50 थे. तो he has done that. He's a 15-year-old, 50 posts डाल के he has got all 16 हो गए.
almost 60K followers, है ना, in like half a year. Yeah, 3 months. 3 months. Oh. See, so what are your viral strategies? Can I start? Would you mind? Because I have a very simple answer to it. Yeah. Value. That's it. A lot of when you're going to quantity, it's always gonna be how much. So there are most people recommend that it's quantity or quality, right? You know, we should post more number of reels, we should post more value, whatever it is. My simple is value. How much value you are giving to someone would be equivalent to how many people would like to follow you. That's it. I literally simplified that. You also यस सो बेसिकली वैल्यू तो बहुत सी चीज है बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि आज के समय वैलिडिटी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं कि मेरा रील वायरल हो जाए वैलिडिटी मिल जाती है फॉलोअर्स नहीं मिलते सो मेरे हिसाब से लोगों को एक रीजन देना जरूरी है आप एक ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता इन माई केस मैं डार्क साइड यानी कि केसेस बताता हूँ पॉलिटिशियंस के या फिर कुछ ऐसी रिसर्च होती है जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल और कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर की होती है इसलिए मेरे ऑलमोस्ट 90 डेज पे 266 के फॉलोअर्स हो गए ऑलमोस्ट 250 के प्लस सो दैट इज माय रीजन वो चीज मैंने अभी फाउंड आउट करी है मेरे थ्रू ही या द सेम रीजन मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली है ये इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो आपका वैल्यू ड्रिवन कंटेंट होता है बट शायद कुछ यूनिकनेस नहीं होती है दैट थिंग इज अ मेन मोड जैसे अभी मोड कह रहे थे तो कंटेंट में हमारा मोड जैसे मेरा पर्टिकुलरली आई गॉट 10,000 फॉलोअर्स इन अ डे 1 लाइक 28th में को मैंने अपना फर्स्ट कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट डाला एंड नेक्स्ट डे गॉट 10,000 फॉलोअर्स 9 days 50,000 16 days 1 lakh वो हुआ ही इस चीज की वजह से बिकॉज टू सिंप्लीफाई द टेक और एक बहुत फनी वे में आई ट्राई टू प्रेजेंट तो इसकी वजह से तो दैट्स इंपॉर्टेंट द वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट कभी कभी आपको ना वैल्यू आप बहुत ज्यादा देने की कोशिश करोगे आपको मन में लगेगा यार नहीं हो रहा है पता नहीं मैं सब कुछ तो बता रहा नहीं हो रहा है सब कुछ तो बताना नहीं हो रहा है इसका रीजन ही बस ये होता है क्योंकि जो आप बता रहे होते हो सेम वैल्यू शायद कोई और भी दे रहा होता है तो ट्राई टू बी लिटिल यूनिक थोड़ा सा मोट ऐड होना ही चाहिए तभी शायद बन पाएगा बट आई थिंक ओवरऑल तो सबने कवर कर दिया बट व्हाट आई बिलीव इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट केटर टू योर ऑडियंस की ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है उसको आप कितने बढ़िया वे में प्रेजेंट कर सकते हो आप वैल्यू मान लो कि फैक्ट बहुत लोग देते हैं बट फैक्ट क्या है अपने वे में अपने पर्सपेक्टिव में अपने ओपिनियन में दे पा रहे हो सो व्हाट्स योर यूएसपी जो कि काफ़ी अच्छे वर्ड में मोड बोला तो वो एज यू स्टार्ट बिल्डिंग आपकी ऑडियंस ग्रो होती है एंड लोग आपको नाम से या फेस से पहचानते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लोग देते हैं या इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी बट वो पर्सपेक्टिव ओपिनियन वो चीज़ अगर आप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो कंसिस्टेंटली देन आपके फॉलोअर्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं So, yeah, in my case, what worked for the content is I was uploading a content which was more valuable. I was like sitting in a proper setup and doing a lot of stuff. But that point of the time, the content was, like just getting 70 likes, 80 likes, and it didn't work for me. What worked for me, it was relatability. So I started creating very normal content. Actually, I didn't mention anything about me, like I'm a world record holder running startups, nothing. I was just creating the content where I was just telling I'm a 15-year-old guy who's building a startup. So all the audience started connecting with me, like कि भाई हमारे में से कोई भी उन्हें आ रहा है और बना रहा है कुछ इसलिए they were connecting with me. That is how that thing worked with me. So I think value is again the main point. So value I was providing the value. It was not कि भाई सिर्फ बता रहा हूँ 15 साल को. But the thing is, I was providing the value, but not a lot of value again gives the thing. So relatability, that is what matters. That is what I think. Exactly, I was going to say that point. So हमने भी content बनाया हमने बहुत बताया कि we have ran a brand before, we have done this, we have done that. We are giving you value, but the point is no one is relating. come enough that's it exactly So when I made a video, I'm a 22-year-old trying to build a $1 billion company by 2026. What's the name Unicorn 2026? Even though it's hardly कितने chances हो गए, but the point is वो 22-year-old वाला hook work करा. And जब भी मैंने hook use करा, it gets me reach. So By the way, I am also 21. same same. But आप ये सब बोल नहीं सकते क्योंकि you are commenting on politics. Exactly. Okay. So as a creator, when do you think is the right time कि content creation को as a full time career choose कर लो? Okay. I guess I can answer this question. If you are doing some job, I mean, I'm doing a job in Accenture. Until or unless you are creating more value from your content, or you are creating or you are generating more money from your content,
rather than your job. तब तक आप जॉब करते रहो. अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर आप छोड़ सकते हो. I mean that is a very simple answer. आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, ऑब्वियसली वो मिलेंगे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो छोड़ दो भाई. वेरी वेल सेड. मैं बिल्कुल इस पे राइटली एक्सेप्ट करूँगा इस पर्सपेक्टिव को, until unless ये जॉब है तो. फॉर मी इफ यू आर फाउंडिंग समथिंग और आप कंटेंट मतलब आप ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड हैव समथिंग बिल्ट ऑन योर ऑडियंस. मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता. मतलब मैं एक दिन सोच रहा था कि अब क्रैक रीच टू मी कि प्रमोट दिस एडटेक प्लेटफॉर्म ऑन योर पेज. सो अगर मैं खुद अगर कोई एडटेक सास कुछ बना रहा होता और मैं उनको पिच कर रहा होता तो इट माइट बी पॉसिबल. अपग्रेड मेरे को पैसे पे कर रहा है टू बाइंग माय ऑडियंस, व्हाई कांट आई डू दैट? तो फॉर मी इट्स लाइक इफ यू आर अ फाउंडर, इफ यू आर थिंकिंग एज अ सीईओ पर्सपेक्टिव माइंड से आप सोचते हो तो हमेशा हमेशा आपको अपना मेन के साथ कंटेंट क्रिएशन को सबसे सॉलिड मोड रखना चाहिए, जो वेरी वेल सेट बाय ऑल द फाउंडर्स. मतलब बहुत एक्सेप्टेड है मेरे को. हाँ, Basically, how can you monetize your audience? So the way that you how can you build a startup? What I would say is based on your distribution possibility that you have. like B10X, I have seen the ads and all. अब वो फिर content में घुसना start कर. That help them to अब उनको बहुत अच्छी brand value मिलेगी and help. I would say कि of course आप कंटेंट अपने जॉब से जब ज़्यादा कमाते हो तब you can think, but at least to have 6 month savings आपके पास होनी चाहिए. क्योंकि होता क्या है कि 1-2 महीने तो आपको ब्रांड प्रमोशन मिल जाते हैं, बट किसी महीने व्यूज नहीं आए तो आपको फिर या तो सेविंग्स होनी चाहिए सस्टेन करने के लिए. एंड आपके बैक ऑफ द माइंड में भी ये होना चाहिए कि मे बी कंटेंट क्रिएशन 6 महीने 1 साल 2 साल चल सकता है. तो अगर नहीं चला तो विल आई बी एबल टू रीजॉइन या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ. तो एक प्लान भी एटलीस्ट माइंड में होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. क्योंकि जब अचानक आएगा कि भाई 2 महीने से पैसे नहीं बने, सेविंग्स खत्म हो गई, तब आप फिर राइट डिसीजंस ले नहीं पाओगे, फिर डर लगेगा. सो आई वुड से कि 6 महीने की एटलीस्ट सेविंग्स रखो एंड देखो कि 2-3 महीने आपकी कंसिस्टेंटली आप अपने जॉब से ज़्यादा कमा पा रहे हो. एंड फिर एक अगर आपके मन में बैकअप है कि कंटेंट के साथ मैं भी कोई एजेंसी खोल रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कोर्स बनाने की कर रहा हूँ, एक बैकअप भी हो, देन फिर आप कॉन्फिडेंटली जॉब छोड़ के ट्राई कर सकते हो. बट जल्दीबाजी में कि 2 डील आ गई, 1 महीने ज़्यादा पैसे कमा लिए, ये मत सोचो कि यार हर महीने आने वाला है. सिर्फ जॉब का मनी कंसिस्टेंट होता है. हाँ, और कुछ कंसिस्टेंट नहीं है. सो है वन क्राइटेरिया कि सपोज करो अगर आप एक कॉलेज पे हो और आपका प्लेसमेंट लगने वाला है सपोज 5 लाख है ना, या फिर मतलब मिनिमम हम भी लेके चल रहे हैं, एंड या फिर आप जॉब करते हो एंड आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, ईयरली कमाते हो. तो अगर आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि आने वाले 2-3 महीने में ये जो अमाउंट मैं 1 साल में कमाने वाला हूँ, क्या इसे 2-3 महीने में कमा सकता हूँ? अगर आप उस लेवल पे कंटेंट क्रिएशन में पहुंच चुके हो तो आपको फुल टाइम कर लेना चाहिए. उसका सिंपल सा रीजन ये कि हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू टाइम है. अगर आप 7 महीने वाला काम जो आप करते हो उसको आप 3 महीने में कमा चुके हो, तो आप 7 महीने फकअप कर सकते हो, आप चाहे तो फिगर आउट कर सकते हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो. बट वहां का आपके पास एक लिबर्टी होगी, एक प्रिविलेज होगा कि अब आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को. एंड उसके अलावा एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि बहुत से लोगों का एक माइंडसेट ये होता है कि मतलब एक सोशल क्राइटेरिया कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, फिर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा. बट हमें सबसे पहले ये सोचना है कि इस दुनिया में सब कुछ अभी नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो नया, उस पर फोकस करना है. I guess content बनाना is very different people to people. अगर मैं एक content creator बनना चाहता हूँ, I don't have anything to do else. That is a different thing. कोई एक बंदा जो startup run कर रहा है, उसके लिए content बनाना is different thing. क्योंकि अगर मैं content creation में आ रहा हूँ और मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, तो I am just thinking content creation as a like कि मेरे को monetization perspective से मुझे देखना है. But if I am a person who is already having a business, तो मेरे को चाहिए visibility कि मेरा जो product है वो sell हो जाए. तो first of all, if you are starting और अगर आपको figure out करना है कि सबसे पहले figure out ही करना रहता है कि हम content बना किस लिए रहे हैं. I am a business owner, मेरा जो goal रहेगा वो different रहेगा. मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, मेरा goal जो है different रहेगा. तो ये figure out करना कि हम content बना किस लिए रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 90% of the time content creation cannot be your goal. It cannot be your end goal. आपको उस कंटेंट के थ्रू कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. Either it could be your product, your course और कुछ भी basically. तो content creation 90% of the time आपका end goal नहीं होगा. Just keep this in mind. So, just to add on this one final point. So, when it comes down to content creation, if you're keeping content creation as your primary monetary source, like source of revenue, then
all these points are very valid. That you keep 6 months of saving because monetary pressure is very real. But then what Dinu said, that if your content's primary goal is to get you revenue or get you traction for your product or your service, then this metric change. Because how I have been a content creator technically for 3 months, basically a viral one, what you will say. But I've been an entrepreneur before that, from mindset wise for over 7 years, 8 years, and from proper my own AI, my own performance marketing agency for 1.5 years. And how I shifted from job to freelancing or my own agency, I had one simple thought in my head: will I die out of hunger if I do this? And that was the turning point. I was in Udaipur. I was like, okay, my job is over. I got an offer from a company, but still I went back to home because I wanted to do this entrepreneurship. Because at this age, if I'm not trying this and failing at it, at least, then there would come an age where I wouldn't be able to do it because there would be a lot of responsibilities. Right. So that was the whole shift, and that one line: that will you die out of hunger? I have a follow-up question again. कि as much as you see कि brands creators के बीच भागते हैं कि हमारी sponsorship कर देते हैं, आप हमारा brand promote कर दो. अभी trend आ रहा है कि influencers are creating their own brands. है ना? बहुत common trend है. मैं भी पहले creator था. I started my own company. Now we are starting something else. जितना ज़्यादा fast grow होता है brand, distribution solid है. इससे तो fast grow होता है. उतना ही जल्दी बंद भी होता है. अभी latest example is Easy Snippet. T-shirt brand launch करेगा, shut down in a few weeks, right? And अभी हमारा अगर हम थोड़ा cringe side पे जाते हैं तो पुनी सुपरस्टार designs are crazy but 2-3 months बाद हो गया. So what do you think about it? What are your views? कि should a creator start his own brand at this stage? What should be the right point कि अब हमें अपना कुछ establish कर लेना चाहिए कि we cannot, क्योंकि अभी ये भी होता है ना कि आपका Instagram account ban हो गया, ठीक है ना? अभी एक बहुत बड़े creator का ban हुआ था, Twitter पे कितना approach कर लिया, कुछ नहीं हुआ. वेल आई हैव सिंपल क्राइटेरिया फॉर दिस कि सपोज आप एक फाउंडर हो, आप एक टेक कंपनी चलाते हो, जिस दिन आपकी फैन फॉलोइंग एज अ आर्टिस्ट लेवल की हो जाएगी, सपोज करो आप एक रैपर हो और भले आपसे सोशल मीडिया पर 5 लाख लोग हैं, मगर अगर आपका कॉन्सर्ट होता है तो कम से कम वहाँ पे 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो आपकी टिकट खरीद के आपको सुनने आएंगे. जिस दिन आपकी फैन फॉलोइंग वैसी हो जाए फिजिकली, उस दिन आप हो जाए. बिकॉज उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक नॉइज है सोशल मीडिया पे, वो लोग कन्वर्ट नहीं होने वाले. ओके, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मेरे को थोड़ा समझ में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रियल मैट्रिक नहीं दे सकते आप. लोगन पॉल और KSI ने अभी ब्रांड लॉन्च किया प्राइम. दे वर कंपेयरिंग दैट विद गेटोरेट की गेटोरेट $6 बिलियन के रेवेन्यू पे, तो शायद अभी धीरे धीरे करके व्हाटएवर दे आर डूइंग, हाइक में 2 साल उन्होंने बहुत अच्छा खींचा. नाउ शायद 37 मिलियन लॉस पे आ गया है कुछ अभी इस साल. मतलब दैट वाज 200 या 250 मिलियन लॉस पे था वो. अब बहुत टफ हो गया ये चीज सोचना कि लोगन पॉल और KSI की बात करूं तो शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ब्रांड पुल आउट इन्होंने किया था. तो ये चीज को बहुत ज्यादा सोचना है. जैसे गर्वित ने कहा, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस बात को, लेकिन इस बात को इसमें ये है कि आपके पास सही में कोई टेंजिबल मैट्रिक नहीं है इसका कि कब आपको लगता है कि हाँ अब शायद इट्स अ राइट टाइम, कि कब मुझे लगेगा कि लाइक सपोज दीनू का एग्जांपल हो, कब मुझे लगेगा कि यार मैं एक AI टूल लॉन्च कर देता हूँ कि क्या शायद पक्का मेरे नाम पे खरीद लेंगे. तो इट्स पॉसिबल है कि हाइप वाली एक टाइम अलग है. अब जैसे कुशा कपिला ने अभी ब्रांड लॉन्च किया अंडरनीड, आई गेस सबने सुना होगा. इससे पहले भुवन बाम का ब्रांड फेल हुआ, यूथियापा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स फेल हुए और इंडिया में बहुत कम ही चल पाते हैं. तो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा राइट मैट्रिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल डीप कनेक्ट शायद ऑडियंस से होगा कि कुशा कपिला मोटी से पतली हुई तुरंत. इन दैट पीरियड एकदम एक टाइम पे आपने लॉन्च कर दिया और आप 4 करोड़ के उस पर पहुंच गए थे, मतलब मंथली रन रेट पे पहुंच गए थे. बट स्टिल मेरे को लगता है कि बहुत टैंजिबल मैट्रिक बताना सच में बहुत टफ है. फेलियर के चांसेस हैं अभी भी इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड्स में ज्यादा. सॉफ्टवेयर साइड में आई एम मोर कंफर्टेबल. ये D2C स्पेस, इन सब चीजों में इट्स वेरी 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 हार्ड, बिकॉज सॉफ्टवेयर साइड में लाइक प्रियांक इज गिविंग अ नॉलेज ऑफ Anyden. मेरे को इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा प्रियांक पे कि प्रियांक कल को आके मेरे को बोलेगा ना यार आप Anyden तो यूज कर रहे हो पर इससे ज्यादा अच्छा टूल ये है, तो मैं प्रियांक पे शिफ्ट हो जाऊंगा. दीनू का एक कोर्स है AI पे पूरा. अब दीनू ने एक टूल बनाया जो हो सकता है नैनो बनाना टाइप के इमेजेस जनरेट कर रहा हूँ, शायद अच्छे जनरेट कर रहा हूँ, और मेरे को बोले गूगल तो ठीक है पर आप इसमें शायद ये चीज अच्छा कर सकते हो, तो इट माइट पॉसिबल दीनू में शिफ्ट हो. तो सॉफ्टवेयर का साइड अलग है. बट ये पूरा जो अभी हम बात कर रहे थे दैट आपने टी-शर्ट ब्रांड्स लॉन्च किया, इनका तो फेल होना इसलिए रीजन हो गया, बहुत सारे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है वो चीज कनेक्ट करना अगेन वो चीज लाना. तो दैट्स माय पॉइंट. हाँ, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं.
ऐसे भी एग्जांपल्स है लाइक टेक बर्नर हो गया, हाँ। ठीक है, उन्होंने लेयर्स लॉन्च करा, देन ओवरलेस लॉन्च करा, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। अभी वो पीछे टेक कंपनी बना रहे हैं पूरे, एक उसका रेडिट किस पे वर्क कर रहे हैं पता नहीं। तो लाइक 1 2 3 मल्टीपल इनकम्स चलाते जा रहे हैं। देन वी हैव वेरी गुड एग्जांपल गौरव तनेजा, ठीक है, ब्यूटीफुल एग्जांपल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे इन्होंने क्या राइट करा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। सो आई वुड से कि जैसे एक इन्फ्लुएंसर होता है वो इनिशियल सेल्स ला सकता है, इनिशियल हाइप क्रिएट कर सकता है, बट अगर आपको एक ब्रांड बनाना है तो उसके साथ आपको एक ऑपरेटर भी चाहिए जिसको जो कि इसे लॉन्ग टर्म चला सकता है, क्योंकि एक ब्रांड बनाना है तो फुल टाइम जॉब, और इन्फ्लुएंसर जो है उसका फुल टाइम जॉब कंटेंट क्रिएशन है। तो जैसे कुशा कपिला है, वहाँ पे उनके फुल टाइम ऑपरेटर है उनके पास जो कि पूरा कंपनी मैनेज करती है, उनकी कंपनी चलाना है, आपको इन्वेस्टमेंट उठानी है, ब्रांडिंग करनी है, बहुत चीज़ें करनी है। अगेन विद गौरव तनेजा, उनके पास एक प्रोफेशनल सीईओ हैं जो को-फाउंडर है, क्योंकि ब्रांड बनाना पूरा एक सेपरेट काम है सिर्फ हाइप क्रिएट करने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है, आप क्या मार्केट में डिफरेंट ला रहे हो, और टीम कितनी स्ट्रांग है। तो टीम स्ट्रांग होने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग ऑपरेटर, स्ट्रांग को-फाउंडर होना चाहिए, या फिर टेक बर्नर भी है, ऑलमोस्ट हर वेंचर में उनके अलग अलग को-फाउंडर है जो कि पूरा टीम मैनेज कर रहे हैं, फंडिंग मैनेज कर रहे हैं, हाँ, एंड फाइनेंसिंग मैनेज कर रहे हैं, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जो एक इन्फ्लुएंसर होता है उसको ना उतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट की या अकाउंट्स की, लीगल की, रिसर्च की, ब्रांड बिल्डिंग की उतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो बस आपको इनिशियल हाइप दे सकता है और एक ऑथेंटिसिटी बना सकता है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाना है सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर, को-फाउंडर जो कि कंपनी को फुल टाइम चलाए, नॉट कि आपकी तरह पार्ट टाइम। वो कहते हैं ना कि एक बार में 2 नाव पे पैर रखोगे तो गंदा गिरोगे। तो व्हाट एक्चुअली योर क्वेश्चन वाज देयर, यही कि क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, अब ऐसे इन्वेस्टर पैनल इज सिटिंग हियर, फाउंडर्स आर सिटिंग हियर, राइट? वी डोंट नो देयर पर्सनल ब्रांड हाउ स्ट्रांग इज इट, बट दे ऑल आर सीजन फाउंडर्स और दे हैव डन देयर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये दोनों चीजें काफी हद तक मे बी रिलेटेड हो सकती हैं, बट काफी अनरिलेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स का कोई भी पर्टिकुलरली पर्सनल ब्रांड नहीं होता है, but they still have very successful businesses. So there's something that founders know that content creators don't, and then there's something which content creators know which founders don't, right? So if both of them work in a sync, like the example that Arnab put forward, that if they both work in sync, then a brand can probably thrive, right? Because जब दोनों अपनी learnings लाएंगे, founder side से founders perspective आएगा, वही enthu आएगा, वही energy आएगी, content creator side से वो influence आएगा, वो distribution आएगा, then it works. And final call would still be, as somebody from the founders panel, Mr. Pluti, Nitesh ji said, Nitesh sir said, कि आखिरी जो चीज होगी ना वो प्रोडक्ट पे हो, कि तुम कर लो मार्केट, तुम कर लो, पर प्रोडक्ट जब वो ट्राई करेगा, ब्लूटी ट्राई किया, राइट, उसके बाद वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, रिटेंशन कैसा रहेगा, वो रिटेंशन साइड पे चला जाएगा, क्योंकि बार बार एक इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइज करके परचेज नहीं करवा सकता, राइट? सो वो एंगल उधर चला जाता है। दुबराटी का एआई, Pardon? दुबराटी एआई, AI Fiesta, right? From Durrati, correct. What did he create? So Perplexity is technically a wrapper. It has multiple modules. Multiple APIs from Claude, Sonnet, and Anthropic and all LLM created. AI Fiesta was a wrapper of a wrapper. Basically, ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, all of these in a single frame, in a single screen. He had distribution. He got like 999 rupees per month का subscription with everyone. And he said कि हाँ इतना बड़ा ARR हो गया मेरा, right? But next day ChatGPT released their Go plan for 400 rupees और लोग खत्म, right? So 2 दिन में खत्म, right? So that was the whole timing वाला thing, right? So can't it's all business versus content creators, or there's a line there. वो cross करना, दोनों चीजें आना, it's very tough. I guess I'll tell you few mistakes I did and I'm still doing it, और अभी रुक नहीं वो mistakes. सबसे पहले अगर if I am a content creator, I want to launch my own brand, I should have a very good following. I should have a very good connection with my audience. This is the prime requirement. A good number of followers and a very good connection with my audience. उसके बाद I should have a very solid product. क्योंकि अभी जैसे सभी ने बोला कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आई हैव डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने लॉन्च कर दिया, बट मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एज गुड, तो वो चलेगा ही नहीं। एक बार चलेगा, ठीक है, लोगों ने एक बार के कहने से खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो चलेगा नहीं। दिस इज फ्यू क्राइटेरिया। नाउ व्हेन शुड आई स्टार्ट दिस?
मेरे पास फॉलोअर्स भी है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है और मेरे पास अच्छा कनेक्शन भी है। आई एम डूइंग फ्यू वर्टिकल्स जहाँ से मेरे पास पैसे आते हैं, मोनेटाइजेशन। द फर्स्ट वन इज ऑफकोर्स दी ब्रांड्स, ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ, वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। सेकेंड इज आई गो टू द कंपनीज, आई ट्रेन दियर एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेसिकली। द थर्ड वन इज द कोर्स एंड द फोर्थ वन इज द क्लाइंट्स जिनके लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। द प्रॉब्लम इज जो मेरा मेन चीज है कंटेंट, वो मैंने ऑटोमेट नहीं किया है। तो अभी मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट है। मैं 4 अलग अलग चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज करता हूँ तो दूसरी रह जाती है, दूसरी करता हूँ तो तीसरी रह जाती है। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर फर्स्ट आई नीड टू फिगर आउट कि मैं जितने भी वर्टिकल्स से काम कर रहा हूँ उसके पहले वाले सारे वर्टिकल्स जो है ऑटोमेट हो, उसमें मेरी डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट या फिर कुछ भी लॉन्च करना है, उसके पहले वाले जितने भी सारे काम हैं वो सारे के सारे एटलीस्ट 80 to 90% ऑटोमेट होने चाहिए, मेरी डिपेंडेंसी उस पर कम होनी चाहिए। अगर वो मैंने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, फिर मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, लेकिन जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रोडक्ट के चक्कर में लग गया तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन तो रह जाएगा, तो वो वैसे ही नहीं चलने वाला प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वॉट एवर वर्टिकल्स यू आर वर्किंग ऑन, वो सारे के सारे ट्राई करो कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च किया, फेल हो गया, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी कम है, आपने फिर से कुछ और लॉन्च कर लिया, यू कैन ट्राई इट आउट। तो बस ऑटोमेट। Okay, quite interesting inputs. So, यहाँ पे कितने content creators हैं? How many of you have tried creating content? Can you raise your hands? बहुत कम है. And I know a few where they're not raising hands. I will not ask anyone. Tension not. Anyone who failed in content creation? Good. That's a very good sign. You'll be successful. That's how you figure it out. So yeah, no, there comes my next question. What are the common mistakes that early stage content creators do? They stop creating content. I mean, that is the only mistake a content creator can do. Like she is trying, constantly failing and trying, she'll be successful eventually. But if you are trying and you just stop creating content, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते. Is there any timing that you think it's right time to post content? Plus, there should be a regularity of posting daily, or Instagram punishes you for being Okay. irregular. I guess I काफी would like to myths हैं. answer this question. ये सारी चीजें, it does not matter whenever you are just starting. It simply does not matter कि आपको किस टाइम पोस्ट करना है. It does not matter. ये सारी चीजें होती हैं when you have a good number of followers. For example, मैं अगर इस बारे में सोचूं तो it makes sense, क्योंकि मेरे पास मेरी ऑडियंस का डेटा है कि अगर मैं शाम को 6 बजे रील पोस्ट करता हूं तो ज्यादा नंबर ऑफ व्यूअर्स देखते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है 6 बजे ज्यादा एक्टिव रहती है. बट आपके पास फॉलोवर्स ही 500 है, तो आपके पास क्या डेटा रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा. तो एट दी वेरी स्टार्टिंग ये सब चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती है, आप बस कंटेंट पे फोकस करो. वेल शायद आपके लिए वर्क किया होगा, बट मेरे साथ एक चीज आप लोग के बोलूंगा कि हाँ इनकी बात सही है, बट आपका जो भी पर्टिकुलर नीच है, सपोज मेरा पॉलिटिकल नीच था, तो मुझे पता था कि ऑडियंस का 7 से 9 की इसमें एक्टिव होगी, पर ज्यादा इंटरेक्ट करेगी 9:30 से 11 के बीच में. और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा डायरेक्टली कि मैं किस टाइम पे डालूं, एंड जिस टाइमिंग चैट जीपीटी ने बताया वो मेरे लिए वर्क करिए, कॉन्स्टेंटली अभी भी करती है. सो आप ट्राई कर सकते हो. सो फॉर मी, मैं तो डीनो भाई के आंसर पे ही हूँ. मेरी फर्स्ट रील पे मोदी जी बहुत स्लो बोलते हैं, तो हुक 3 सेकंड का हुक होता है, यू ऑल नो कि 3 सेकंड हुक में आपको अच्छा सा ग्रैब अटेंशन ग्रैब करना है. तो मोदी जी स्लो बोलते हैं वो, तो मेरे मोदी जी ने बहुत स्लो क्वेश्चन पूछा और वो हुक पास हो गया. पर मैं फर्स्ट रील, कोई टाइमिंग नहीं, कोई रिलेटिविटी नहीं, सबसे ज्यादा फनी कंटेंट था तो वायरल हो गया. अब आई हैव ऑल द डेटा पॉइंट्स कि मोदी जी स्लो बोलते हैं, तो मेरे को ना राहुल जी से बुलवाना पड़ेगा 3 सेकंड के अंदर अंदर ही. देन आई हैव कि मेरे को 5 बजे डालना है, क्योंकि मेरी 7 बजे तक ऑडियंस वो रहती है, तो मेरे को 2 घंटे पहले डालना है. फिर मेरे को देखना है कि मेरा हुक रेशियो क्या है. तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं, इट्स ऑल पजल, सब कुछ मैथ्स है, पर ये कभी भी इनिशियली टाइम नहीं आएगा. गर्वित का मैं लेता हूँ एग्जांपल कि अगर कोई ऐसा वायरल वर्दी कंटेंट होगा ना जो एकदम आपका फर्स्ट वीडियो में वायरल होने वाला होगा, जो पकड़ लेगा इंस्टाग्राम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप रात के 3 बजे डालो जब पूरी दुनिया सो रही हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़े टाइम बाद फर्क पड़ना स्टार्ट होगा ही होगा. थोड़ा टाइम आप लोगे, देन इट स्टार्ट्स की
हाँ भाई ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, तो कोई टाइमिंग मैटर नहीं करती इनिशियली में। द गर्ल हु इज क्रिएटिंग कंटेंट, मतलब कंटेंट डालो, मतलब इससे ज्यादा दुनिया में चेंजेस नहीं आ सकते आपकी लाइफ में। आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आपको पता नहीं लगेगा। मैं रात को 1:30 बजे डालता हूँ। मेन वही है कि एक तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको चाहिए पांचवी रील वायरल हो जाए। मैंने तो 10 वीडियो डाल दी है या मैंने 10 रील डाल दी, उसने तो 50 पोस्ट में उसके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, मेरे 10 पोस्ट में 1000 फॉलोअर भी नहीं है। तो लोग वो कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग, यार अभी मैंने 2 डाले, इसमें क्या फीडबैक आया, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। तो एक तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ऑडियंस जो भी थोड़ा बहुत फीडबैक आपको मिल रहा है उसको इम्प्रूव करो। आपकी हमेशा नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस से बेटर होनी है। और ये मत सोचो कि यार उसके 50 पोस्ट में लाख फॉलोअर्स हो गए तो मेरे 25 पोस्ट में 50,000 होने चाहिए, तो 12 पोस्ट में 25,000 होने चाहिए। ऐसा मैथ्स वर्क नहीं करता। वो जब ग्रो होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो होता है, तो करते रहो, अचानक एक दिन जादू होगा। मेरे एक वीडियो पे मुझे 1 लाख फॉलोअर्स गेन हुए थे, एंड कुछ वीडियो से मुझे 200 भी हुए हैं। मेरे एक दिन में 10,000 फॉलोअर्स भी आए हैं, किसी दिन 1000 तो मेरे डेली अभी आते हैं। सो कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, बट एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके जो शुरू के 50 वीडियोस होते हैं उनमें आप ऐसा एक्सपेरिमेंट सोच लो, आप कोई भी निश बनाओ। लाइक मैंने पॉलिटिकल स्टैंड अप ट्राई किया था, मैंने जोक्स ट्राई किए थे, मैंने पॉलिटिकल शायरी भी ट्राई करी थी, मैंने पॉलिटिकल रैप भी ट्राई किया था। उसके बाद मैंने दोनों पॉलिटिकली कमेंट्री करा एंड वो वर्क किया मेरे। सो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यू हैव टू एक्सप्लोर। I totally agree to the point. Starting me initially it doesn't matter, but what worked with me was I was uploading the same piece of content, but I experimented with the timing. So I used to upload at 5:30 and one into the 11 a.m. So earlier it was working on the 5:30, and I just asked for the ChatGPT and it said कि 11 बजे upload करो. So I created a new account that was my unofficial page, and the first reel, the same topic, everything was the same, and I uploaded at the 11 a.m. And onto my main account, it got around 50k views, and the same reel got 700k views onto the 11 a.m. I don't know why, and that is how it worked. So initially it doesn't matter, but अगर चलनी है तो चल भी जाएगी. Initially, what you can do, if this is specifically for Instagram, what you can do, you can try trial reels basically. So अब जो भी आप रील पोस्ट कर रहे हो, if you are posting it at like 5 p.m. तो सेम रील को आप 9 बजे सुबह रात में 3-4 बारी पोस्ट कर दो और देख लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ इंस्टाग्राम। So, hopping back to the question, initial question which they have asked, why do content creators fail? Exactly, what would be the failure side of things, of what would make them succeed? I have 3 points on that. One is gonna be a very big factor which, see, me being a content creator who has failed in past, you see my 40 posts which are on AI, but I have posted around 80 reels which are all archived, which were dedicated to performance marketing. Because I have run my performance marketing agency for 1.5 years and nobody knows about it. And they were very short content. Podcast style में setup किया था, camera रखा था, zoom in करके lighting लगा के. Nobody knows about it. Right? Why? Because first point, trend. That's one thing that either you create a trend or you are in the trend. यहाँ पे सारे AI creators बैठे हैं and AI is in trend right now. और you make a trend. How you make a trend, as I said, right? Of course. That's why I included that, right? Then, one is trend. You talk about the trend. Performance marketing, when I was talking, nobody cared, right? There are hundreds of performance marketers out there who is giving better advice. Or same advice, but they have more credibility because they hopped in the trend in the past. One. Second, start with why. There's a book by Simon Sinek. He's one of my favorite authors and one of my favorite person in this world, right? He has a book, Start With Why. So, why should somebody follow you? Why somebody, I hope that, why is somebody following me? Because I am making India AI ready. That is a mission. People, community building, as founders do, right? So, why would the business run? Because it's a community built around it. So, what I'm doing is, my content is associated with a mission. Now, everybody who wants to make India AI ready would hop in for the mission, right? So sometimes it's not you, it's the mission that they are following, right? So yeah, that's the second point. And third, it's definitely, I come back to that value wala thing. Too much value is definitely, but give some incentive. ये जुगाड़ वाली चीज़ है, give some incentive as to why. या तो it's totally entertainment,
या इट्स थोड़ा सा इंसेंटिव कि व्हाई शुड दे फॉलो यू। अब मेरा यूनिक कंटेंट ऐसा है कि आई गिव माय कस्टम ऑटोमेशन, मेरे खुद के बिल्ट, जो कोई टेम्पलेट छाप के नहीं दे रहा, मेरे खुद के बिल्ट टेम्पलेट्स हैं, तो पीपल ऑप्ट इन फॉर दैट कि ये कहीं नहीं मिल रहा, ये यहीं मिल रहा है। तो या So I will have last two questions for the panel. The first is that what kind of social media platforms are working the most in terms of money that you get from creating content there, or money that you can get by creating content there? For example, we were discussing in the morning कि LinkedIn पे post करते हैं, LinkedIn पे अभी people are giving 2K per post, 1K per post, brands are giving, then वो भी नया statement आ रहा है। Anjab पे obviously you can create content and get hired, but that is different. When you talk about Instagram, Twitter, Facebook, and your LinkedIn, which one is working best? Plus there are more Reddit है, Twitch है, कहने को तो बहुत है। उसे अगर डन ऑफ ब्रांड डील बता दो भाई, मैंने नहीं करी अभी तक। ब्रांड डील आपके बारे में My question is, my question is, which platform is working the best for creators right now in terms of making Instagram. money? Instagram. आपको उतने पैसे YouTube पे नहीं मिलेंगे, LinkedIn पे नहीं मिलेंगे। The kind of money you'll get on Instagram is पर व्यू पे, हाँ एग्जैक्टली। too much. मतलब Even on your story post, basically, not just your reel. द मेन रीजन इज द इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। मतलब आपको ब्रांड बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ चैट मैसेज थिंग नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि मतलब इंस्टाग्राम आप रोज बोल रहे हो, यूट्यूब इज ओनली फॉर द लर्निंग। हाँ, यूट्यूब लॉन्ग वाली जो दुनिया होती है वो एक अलग क्रेजी क्रिएटर्स होते हैं जो यूट्यूब लॉन्ग पे बहुत वायरल होते हैं, उनकी कोई बात, मतलब वो बहुत बड़े होते हैं, वो उनकी कोई बात नहीं कर सकता। बट अगर आप वैसे पूछोगे तो इंस्टाग्राम से बड़ा कुछ नहीं, बहुत पैसा मिलता है कंपैरिजन टू यूट्यूब शॉर्ट्स और यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आई थिंक इसमें सिंपल सा पॉइंट ऐसे ही हो जाता है कि इंस्टाग्राम इज दैट स्प्रिंट वाला थिंग एंड यूट्यूब इज द मैराथन। राइट, कि if you've posted something on YouTube, let's say an endorsement with a coupon code that you buy this SaaS tool based, if you're creating this workflow, you buy this SaaS tool like Nate Herc and Nick Sarev do. Like these are US creators in my niche, N8 and AI automations. Like they do, they provide their coupon codes. Like Nate Herc affiliate incomes, exactly. Nate Herc has endorsed Blotato, right? It's a SaaS tool for social media posting. Nick Sarev has done a lot, but recently what I discovered was Vane. Okay, so Vane is a LinkedIn URL scraper, right? LinkedIn Sales Navigator URL. Nobody hears about it. We do. We are developers. We look into that, right? And he has endorsed that, and he would get a lot of payment because the audience is very niche, but we pay for it, right? Me, I'd pay very gladly like $30 per month for that tool because it's a necessity for me. Right, it's not for the mass audiences. So who you are creating content for also matters. If it's a mass deliverable tool, Instagram is the best option, right? It needs to go to the masses. But if it's so niche, like in my content, my YouTube content would only be watched by people who want to learn anytime and AI automation. So if I collaborate with a SaaS tool which is into this niche, I'll probably make more money there in affiliate over a year than one day over Instagram, right? So that's the whole spectrum. We can't choose one. It's more like which option to choose at what point. आई वुड से कि फास्टेस्ट आरओआई चाहिए तो इंस्टाग्राम बेस्ट है, क्योंकि जल्दी वायरल होते हो, जल्दी ब्रांड्स आते हैं एंड जैसे फॉलोअर्स बढ़ते ही हैं। एंड प्लस यूट्यूब काफ़ी टफ है लॉन्ग फॉर्म में क्रैक करना, बट अगर किसी ने यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म क्रैक कर लिया तो लिटरली ब्रांड बन जाता है। तो अगर यूट्यूब में किसी ने लॉन्ग फॉर्म क्रैक किया वो इंस्टाग्राम में आ जाएगा, तब भी उसके फॉलोअर्स आ जाएंगे। उल्टा पॉसिबल नहीं है, बट अगर कोई शुरू कर रहा है इंस्टाग्राम बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट का एंगेजिंग कंटेंट नहीं बना पा रहे हो तो 10 मिनट का तो वैसे भी नहीं बना पाओगे। भाई in my niche there are creators. हाँ, I create both Insta YouTube, मेरा दोनों है। He started Instagram first and वहाँ से YouTube पे YouTube, exactly. So I transfer the audience. And we get the same amount of money जो अगर हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं उसमें जो ब्रांड कोलैब आएगा that will be similar to the Instagram. जितना Instagram पे पे कर रहे हैं ना ब्रांड हमको, उतना ही almost similar amount हमें YouTube पे भी मिलेगा। But then you are counting out the YouTube income as well. If हाँ, you वो get the that long is form different. views. ब्रांड कोलैबोरेशन हो रहा है। Brand, हाँ, brand YouTube पे then that's why I said it's a marathon वाली चीज। वह जो ऑडियंस स्पेंड करती है, जो एज ग्रुप स्पेंड करता है, वो मुझसे इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर नहीं है। इससे इंस्टाग्राम पे ब्रांड से पैसा लगाना चाहते हैं, हमें मिलता भी है। One last question. As you can see, a lot of AI influencers are coming in, and I have created AI influencers myself. Okay. In fact, हमने काफी brands के लिए भी बनाए हैं, and that has performed really well. मतलब I won't say the name because one hospital we work with. So before we started the job, so उनका brand का page was dead. So we created an AI clone using Hidden All, and
11 लाख प्लगइन लग के बिफोर इट वाज अ थिंग ना तो वायरल हो गया हर पे यूज कर रहा है पहले फ्री था अनलिमिटेड था so we used that and within a month we posted 300 YouTube videos long form ना तो it got 10x views फिर कुछ चालू हो गया gain like 7,000 subscribers 300 so where do you see the future will AI influencers replace the current influencers niche हो जाएगा क्या होगा You're trying to get us in a controversy or what? I have a very clear thought. I have a very clear thought on it. आप जो जीते हो maybe because of that sended video. What I think, what can be helpful with the agent. अभी मैं बैठ के 300 वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा. मैं पॉसिबल ही नहीं है तो मेरे पास अगर 300 वीडियो के चांसेस होंगे तो मेरे पास शॉर्ट ज्यादा हैं हिट करने के. तो that can help. मतलब AI influencers में ये हो सकता है बट कभी भी जो रियल इन्फ्लुएंसर होगा मेरे को नहीं लगता कि आपके पास जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है वो आप ला ही नहीं पाओगे एजेंट पे. सेम वे मतलब विश है, विष्णु इज द कंटेंट क्रिएटर, वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, तो उनका अब चल रहा है ठीक है. अब विष्णु जो कंटेंट क्रिएट करेगा, विष्णु का एक सेट प्लेटफॉर्म हो चुका है, लेकिन जस्ट उसको अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो ही हैव टू, अब उसको आना पड़ता है खुद प्रमोट करने के लिए. उसका ये इन्फ्लुएंसर नहीं प्रमोट कर पाता है, वो उसको खुद आना पड़ता है, खुद चीजें बोलनी पड़ती है, खुद एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाता. बट व्हाट यू आर थिंकिंग कि जो बिजी फाउंडर्स है ना उन, हाँ जो बिजी फाउंडर्स है ना उनके लिए उससे अच्छा आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा कुछ हो सकता है. वीसीज करने लगे आजकल. मैंने बहुत सारे इंडिया के वीसीज, विंड हेल्थ का वीसी उन्होंने अपना एआई क्लोन स्टार्ट कर दिया. तो दे आर डूइंग बस वही बिजी फॉर द बिजी फाउंडर्स, ओनली फॉर बिजी फाउंडर. बट आई थिंक अब मे बी किसी का व्यू. आई वुड से कि जो इमोशंस होते हैं या जो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है वो अभी के टाइम में तो एआई करना टफ है. और नेक्स्ट 5 इयर्स का तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि 5 साल पहले भी हमें नहीं पता कि एआई इतना आ जाएगा. सो बट अभी में वो बोल रहे हैं कि जो कनेक्शन है या जो आप किसी से मिलके जो, हाँ वो वाला बिल्ड करना एआई से मुश्किल है. बट ऑफकोर्स अगर आप सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो तो एआई कर सकता है. बट नेक्स्ट 5 इयर्स तो एंड नेक्स्ट 5 इयर्स का तो किसी को नहीं पता. I think it will be a choice whether I want to create content myself or my avatar. I'm talking about the next 5 years. If I see the growth in past few years, we have come a long way from a still image to talking like, I mean, still we can figure out कि AI ने बोला है. But if I see 5 years down the line, मुझे नहीं लग रहा कि हम बता पाएंगे. And at that time, it will be a choice कि मुझे खुद बनाना है या फिर मेरा AI avatar बनाएगा. Let's say I am creating 2 pieces of content weekly. मैं 2 ही वीडियो डाल रहा हूँ तो it does not make any sense for me कि यार AI से बनवाऊँ. मैं खुद ही बना लूँगा क्योंकि मुझे उतनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं चाहिए. If I am creating content every day या फिर दिन में 2 भी बना रहा हूँ then it makes sense. And आने वाले टाइम में 5 ईयर तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. I guess 3 to 4 years will be enough कि हम बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे कि it is an AI avatar और या फिर रियल ह्यूमन. अभी हम पास्ट 3 इयर्स की ग्रोथ देखें तो आप देखो कितना आ गया. सो इट विल बी अ चॉइस. What I think personally is I totally agree with the point that you mentioned, but the thing is when it comes to the value, again the AI can help you create that part of the content, that type of content. But what I think is when the people like Varun Maya and people, there are multiple people who create, they have monetized a lot of pages just because of the AI avatars and all those stuff. So that it is typically for the founders, it is the best thing for the founders itself. But when it comes to the busy founders, but other people, because there are multiple genres into the content. So for those people, I don't think AI would replace it totally, because still AI, I don't think it can add that humor that a person can, that a real human can add. But it is actually the best thing that would replace it would streamline the process for the founders to maintain their personal branding and grow it. Yeah. When we talk about headshot videos or educational content or that kind of content where we are not exploring the real world, for example, I am a content creator who is going to Switzerland और मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, तो that will not obviously be possible. But headshot content के लिए obviously it will be a game changer. UGC is still a game changer. UGC तो अभी हो रहा है. Even I'm going to post a video like maybe tomorrow. Brand approval देगा तो. It is about UGC only, and I'm telling you guys, you will not be able to figure out. नहीं पता चलेगा. शायद एक आध वीडियो में आपको पता चले because I have created multiple videos, तो 1-2 शॉट में आपको पता चले. But
मतलब मुझे ही नहीं पता चला तो यार बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? So we got great insights on AI avatars. I'd hop back onto the AI influencer wala part. Okay. As they've said, they created an AI influencer and did all that marketing for a hospital. I think there is a massive potential in the field of AI influencers. I'm not talking about AI avatars. Avatars are basically of influencers or business owners or founders or VCs trying to automate their content. But they don't need to spend time there. But if we go to AI influencer side of the things, there are tools which we all might be knowing. Higgsfield is there, Kling is there, WAN 2.5 is there. All these models, they are very adept in creating great UGCs, great AI influencers, where you can simply put a photo, which is also AI generated. Then you can pixelate it to that extent that it looks like a real human. And then you can take that photo, put it into Kling, WAN 2.5, Higgsfield, whatever, and give a bag to it, give a Gucci Prada bag or your own brand's bag or perfume or whatever to it, narrate a whole story, give a background, जैसे सिंगापुर सिडनी का background दे दिया, and you tell that okay, this is what you need to do. You need to walk from here to here while let's say Paris, Eiffel Tower is in the background, and 5 years from now, by even right now it looks very realistic. 5 years from now, it would be so refined that it would be actually impossible for us to gauge that was it like a AI influencer or was it real. Right, so influencing side for 5 years, much earlier, right? 3 years, I think we'll have more of these refined models. Because see, when when Veo 3 came in, it was like 8 second normal video, but 3.1 only just changed the whole game. Veo 2, Veo 3.1. See the difference, and that was like 6, 7 months or probably 1 year max, right? Yeah, even less than that, correct. So how fast it's changing and what will happen, I believe that is going to, my thoughts are inclined towards that, okay, AI influencers will be on the rise. So before we end this panel, I would like to ask one creator or one influencer that is starting up right now, that is very underrated, and you would like to name so that everyone knows about it. I'm forgetting his name. Yeah. So there are many YouTube creators who create great content on YouTube in my niche, N10 and AI automations. I've followed them, I've looked into them, I've watched them a lot, but their Instagram is like non-existent, 400 followers. I don't know why, right? How come is that possible? I'm so sorry, I'm forgetting his name. I need my phone to check that, but I think it's something Ritesh or something. He has his own AI agency. He has around 400 followers on Instagram probably, and he has around I think 20, 30,000 or maybe more than that, 80,000 something subscribers on YouTube. So great YouTube base, great knowledge, but nothing on Insta. He has posted content on Insta, but it's not been viral because it's what very generic, maybe let's say or whatever. I have not observed it, but he has value. So if not on Insta, please do check him out on YouTube. He is great with that. Good content in my niche. Oh, I can name a lot. I go to these underrated because that's where the knowledge is, right? There's one more in my niche, Yashika AI karke. She's very famous on YouTube, but on Insta she's not. She's not been posting content on Insta. I think. Yeah. I think People who have cracked the YouTube. Yeah, they wouldn't. It's possible they'll be good in the end. Correct. Vice versa. Yeah. Can you name a website? Yeah. Can we name a website? Yeah. So there is my one junior. His name is Asutosh Pathak and उसकी वेबसाइट का नाम है विधि ज्ञाता. वो करेंटली इस समय ऑलमोस्ट 6000 प्लस लॉ स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर रखा है जितने भी कॉलेजेस के हैं. एंड उसका जो मोटिव सिंपल सा यही है कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज के जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को कनेक्ट करना है. उनके लिए जो एडटेक वाला जो भी कंटेंट है जो कोर्सेज में दिया जा रहा है जो लोग उसे बना रहे हैं उनके थ्रू उन्हें सेमिनार दिलवाने हैं. एंड ही इज डूइंग ग्रेट बिकॉज कुछ 2 महीने में 6000 लोगों को कनेक्ट करना इट्स अ बिग थिंग. कोई वेबसाइट में इतना ट्रैफिक इजी नहीं होता. सो शाउट आउट टू. Yeah, maybe that girl I can name. She's trying. No, you can't. What's your Insta ID or whatever where you post content? Speak it loud. Low-key psychologist. Low-key I can psychologist. name that. I can name that. Yeah. So like I get good reach on YouTube. On Instagram it's like 1K, 2K on reach. It's 1K, 2K is very good. Uh, I have been onto this 400, 300 views for a whole 1.5 years. So it's very good. The best thing is Dino, I guess. मतलब बहुत छोटे छोटे व्यूज आते थे स्टार्टिंग पे मतलब महीने महीने में नहीं गुड बैलेंस. सो यू हैव टू 200 300 व्यूज भी आते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. इतना चलता है. अगर 1000 व्यूज आ रहे हैं यू आर गेटिंग गुड रीच एंड ऑल.
it'll just take one viral content. I'm saying this very honestly. One viral content, that's it. Even 1,000 views is very good. I'm not kidding. Right? Being a guy who has been into 300, 400, one viral video, just figure it out. Just copy anything which is already viral, take it into your Trend style. is important. Trend is important. Trend As is I said, like once again, a trend is very very important. When you pick up something, no, पक्का possible है कि अगर आप उसमें 10 चीजें एक साथ बनाओगे, 10 चीजें ट्राई करोगे, पक्का बने चलेगा. And it's true 99.9% time. Exactly. हर क्रिएटर के साथ यही होता है, एक वायरल वीडियो चाहिए होती है. And that viral video gives 1 lakh followers ना. 30,000, 40,000, 50,000. मिस्टर नितिन गडकरी जी. Inside side of the things, मेरी जो एक गई है 1.6 million, I got 30,000 followers from that only. So one viral, that's all. वेल आई सजेशन फॉर यू, आप ना क्या कर सकते हो, आप ना जो फेमस पर्सनालिटीज है ना उनकी साइकोलॉजी को बता सकते हो आपके स्टाइल पे, एंड एक सीरीज चला सकते हो. बिकॉज मैंने एक सीरीज रन करी थी डार्क साइड नाम की. तो सपोज अगर मैं इतना नहीं कहा होता कि एक सीरीज है तो लोग सिर्फ लाइक करते चले जाते हैं, बट लोगों को वो मोटिव, वो रीजन मिला कि इसको फॉलो क्यों करना है, एंड इसलिए मैं उस एक पोस्ट पे 1 लाख फॉलोअर्स है. आप बताते क्या वो कंटेंट? हाँ, तो पीओवी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सबसे ज्यादा यूनिक वही होता है. किसी भी चीज को पीओवी देना स्टार्ट करो. वेरी राइटली सेड, मतलब बिल्कुल एग्री करता हूँ. मतलब पीओवी देना स्टार्ट करो साइकोलॉजी पे. तो So there is also one girl who has started, I don't know her name, marketing सिखाती है. नहीं, she's saying कि राशि माने में charge 10 lakh rupees from us. हाँ, like इतना बहुत ज़्यादा charge करूँगा. So it's a good tactic. आप अच्छा भी So it's a good tactic. आप बाकी लोगों की कहते हैं ना फेक के ऊपर राइड कर सकते हो in the starting. और सही है, सब सही है. मतलब कुछ गलत नहीं होता. unless you are hurting somebody's sentiments, सब कुछ सही है. इनका छोड़ के जस्ट डोंट टेक डिफेमेशन केसेस अननेसेसरली. एंड बहुत ज्यादा बोल हो, सबके सब दिख रहा है वैसे. ठीक है, बट Q&A करवा देते हैं ना. नहीं कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. हाँ. पहले आइसक्रीम इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रायल बाद में चलेगा मुझे. Thank you everyone. This was electric, inspiring and incredibly real. I would like to, It is electric. yeah, It is electric. Okay. अरे भाई, which model of ChatGPT? so one by one I would like to felicitate you all. Starting from Priyank, I would like to felicitate you and thank you for being here. And